السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دی ریئل ہسٹری RH چینل لے کر۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہوگی۔ آج کے کردار میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان، خادم الدین البرق اور ایک لڑکی جس نے اپنا نام عائشہ بتایا۔ میرے دوستوں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا۔ کچھ فوج مصر سے تیار کر لی گئی تھی اور کچھ سلطان زنگی نے بھیجی دی تھی۔ مصر کے لوگوں نے ابھی یہ فوج نہیں دیکھی تھی، نہ ہی انہوں نے سلطان ایوبی کو دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس میلے کا اعلان کر کے اپنی فوجی سربراہوں اور ان کے ماتحت کمانداروں وغیرہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملے اور پیار و محبت سے ان کا اعتماد حاصل کرے، انہیں باور کرائے کہ وہ انہی میں سے ہیں، اور ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کو دور دور تک پھیلانا اور اسے صلیبی فتنے سے پاک کرنا ہے۔ میلے سے ایک روز پہلے علی بن سفیان سلطان کو جاسوسوں کے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، امیر محترم، مجھے جاسوسوں کا کوئی ڈر نہیں، دراصل خطرہ اپنے ان کلمہ گو بھائیوں سے ہے جو کفار کے اس زمین دوز حملے کو کامیاب بناتے ہیں۔ اگر ان کا ایمان مضبوط ہو تو جاسوسوں کا پورا لشکر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میلے کے تماشائیوں میں جو ناچنے والی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں وہ صلیبیوں کا جال ہے، تاہم میرا گروہ دن رات مصروف ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اپنے آدمیوں سے یہ کہہ دو کہ کسی جاسوس کو جان سے نہ مارے، زندہ پکڑو۔ جاسوس دشمن کے لیے آنکھ اور کان ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ زبان ہے۔ وہ تمہیں ان کی خبریں دے گا جنہوں نے اسے بھیجا ہے۔ میلے کی صبح طلوع ہوئی۔ وہ میدان بہت ہی وسیع تھا جس کے تین اطراف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ جس طرف ریت کے ٹیلے تھے ادھر کسی کو نہیں جانے دیا گیا تھا۔ جنگی دف بجنے لگے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں اس طرح سنائی دی جیسے سیلابی دریا آ رہا ہو۔ گرد آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ 2000 سے زیادہ گھوڑے تھے۔ پہلا گھوڑ سوار میدان میں داخل ہوا۔ یہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ اس کے دونوں طرف علمبردار تھے، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور پیچھے سواروں کا دستہ تھا۔ گھوڑوں پر پھولدار چادریں ڈالی گئی تھی۔ ہر سوار کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ برچھی کے چمکتے ہوئے پھل کے ساتھ رنگین کپڑے کی چھوٹی سی جھنڈی تھی۔ ہر سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑے تلکی چال آ رہے تھے، دنکی چال جسے دھیرے دھیرے کہتے ہیں۔ سوار گردنیں تانے اور سینے پھیلائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر جلالی تاثر تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تماشائیوں کے دم بخود ہجوم سے اعلیٰ و برتر ہوں۔ ان کی آن بان دیکھ کر تماشائیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ان پر رعب چھا گیا تھا۔ تماشائی نیم دائرے میں کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے تماشائی گھوڑوں پر بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے کے تماشائی اونٹوں پر بیٹھے تھے۔ ایک ایک گھوڑے اور ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین آدمی بیٹھے تھے۔ ان کے آگے ایک جگہ شامیانہ لگایا گیا تھا جس کے نیچے کرسیاں رکھی تھی۔ یہاں اونچی حیثیت والے تماشائی بیٹھے تھے۔ ان میں تاجر بھی تھے، سلطان کی حکومت کے افسر اور شہر کے معززین بھی۔ ان میں قاہرہ کی مسجدوں کے امام بھی بیٹھے تھے۔ انہیں سب سے آگے بٹھایا گیا تھا کیونکہ سلطان ایوبی مذہبی پیشواؤں اور علماء کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر بیٹھتا نہیں تھا۔ ان میں سلطان کے وہ افسر بھی بیٹھے تھے جو انتظامیہ کے تھے، لیکن ان کا تعلق فوج سے تھا۔ سلطان نے انہیں خاص طور پر کہا تھا کہ ان زامہ میں بیٹھ کر ان کے ساتھ دوستی پیدا کریں۔ ان میں خادم الدین البرق بھی تھا۔ علی بن سفیان کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جو سلطان ایوبی کے خفیہ منصوبوں، مملکت اور فوج کے ہر راز سے واقف تھا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا اور اس کا عہدہ سالار جتنا تھا۔ جنگ کے منصوبے اور نقشے اسی کے پاس ہوتے تھے۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ وہ عرب کے مردانہ حسن اور جلال کا پیکر تھا۔ جسم توانا اور چہرہ حشاش بشاش تھا۔ البرق کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی، بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ نوجوان تھی،
लड़की के साथ एक आदमी बैठा था जिसकी उम्र 60 साल से कुछ ज्यादा थी। वो कोई अमीर कबीर ताजिर लगता था। अलबर्क कई बार उस लड़की की तरफ देख चुका था। एक बार लड़की ने भी उसे देखा तो मुस्कुरा दी। फिर उसने बूढ़े की तरफ देखा तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। घोड़े तमाशाइयों के सामने से गुजर गए तो शुत्र सवार आ गए। ऊंटों को घोड़े की तरह रंगदार चादरों से सजाया गया था। हर सवार के हाथ में एक लंबा नेजा और उसके फल से जरा नीचे 3-3 इंच चौड़े और 1.5 फुट लंबे 2 रंगे कपड़े झंडियों की तरह बंधे हुए थे। हवा में वो फड़फड़ाते बहुत ही खूबसूरत लगते थे। हर सवार के कंधों से एक कमान आवेजा और ऊंट की जीन के साथ रंगीन तरकश बंधी थी। ऊंटों की गर्दनें खम खाकर ऊपर को उठी हुई और सर जैसे फख्र से ऊंचे हो गए थे। सवारों की शान निराली थी। घुड़सवारों की तरह हर शुत्र सवार सामने देख रहा था। उनकी आंखें भी दाएं बाएं नहीं देखती थी। ये ऊंट उन्हीं ऊंटों जैसे थे जिन पर तमाशाई बैठे हुए थे, लेकिन फौजी तरबियत, फौजी चाल और फौजी सवारों के नीचे वो किसी और जहान के लगते थे। अलबर्क ने अपने पास बैठी हुई लड़की को एक बार फिर देखा। अब के लड़की ने उसे आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि अलबर्क ने अपने आप में बिजली का झटका सा महसूस किया। लड़की के होंठों पर शर्म और हया का तबस्सुम आ गया और उसने अपने पास बैठे हुए बूढ़े को देखा तो उसका तबस्सुम नफरत में बदल गया। अलबर्क की एक बीवी थी जिसमें से उसके 4 बच्चे थे। वो शायद इस बीवी को भूल गया था। वो लड़की के इस कदर करीब बैठा था कि लड़की का उठा हुआ रेशमी नकाब हवा से उड़कर कई बार अलबर्क के सीने से लगा। एक बार उसने नकाब हाथ से परे किया तो लड़की ने शर्मा कर मुआज़रत की। अलबर्क मुस्कुराया, मुंह से कुछ न कहा। शुत्र सवारों के पीछे प्यादा फौज आ रही थी। उनमें तीरंदाजों और तेगजनों के दस्ते थे। उनकी एक ही जैसी चाल, एक ही जैसे हथियार और एक ही जैसा लिबास तमाशाइयों पर बिजली का तासुर तारी कर रहा था, बहुत ही हैरान कर रहा था, जो सुल्तान अय्यूबी करना चाहता था। सिपाहियों के चेहरों पर तंदुरुस्ती और तवानाई की रौनक थी और वो खुश व खर्रम और मुतमईन नजर आते थे। ये सारी फौज नहीं, सिर्फ मुंतखब दस्ते थे। उनके पीछे मंजनीखें आ रही थी, जिसे आज के दौर में तोप कहा जाता है। घोड़े घसीट रहे थे। हर मंजनीख दस्ते के पीछे एक एक घोड़ा गाड़ी थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर और हांडियों के किस्म के बर्तन रखे थे। उनमें तेल जैसी कोई चीज भरी हुई थी जो मंजनीखों से फेंकी जाती थी। जहां ये बर्तन गिरता था वो कई टुकड़ों में टूटकर सियाल मादे को बहुत सी जगह पर बिखेर देता था। उस पर आतिशे तीर चलाई जाते तो सियाल मादा शोले बन जाता था। सुल्तान अय्यूबी की क़यादत में ये सवार और प्यादा दस्ते नीम दायरे में खड़े और बैठे हुए तमाशाइयों के आगे से दूर आगे निकल गए। सलाउद्दीन अय्यूबी रास्ते में से वापिस आ गया। उसके घोड़े के आगे औलमदारों के घोड़े, दाएं बाएं और पीछे मुहाफिजों के घोड़े और उनके पीछे नायब सालारों के घोड़े थे। सुल्तान ने घोड़ा रोक लिया, कूद कर उतरा और तमाशाइयों को हाथ हवा में लहरा लहरा कर सलाम करता शामियाने के नीचे चला गया। वहां बैठे हुए तमाम लोग उठ खड़े हुए। सुल्तान अय्यूबी ने सबको सलाम किया और अपनी नशिस्त पर बैठ गया। सवार और प्यादा दस्ते दूर आगे जाकर टीलों के अक़ब में चले गए। मैदान खाली हो गया। एक घोड़सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। उसके एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे में ऊंट की रस्सी थी। ऊंट घोड़े की रफ्तार के साथ दौड़ रहा था। मैदान के वसत में आकर घोड़सवार घोड़े पर खड़ा हो गया। उसने बागें छोड़ दी, उछलकर ऊंट की पीठ पर खड़ा हो गया। वहां से कूदकर घोड़े की पीठ पर आ गया और वहां से जमीन पर कूद गया। चंद कदम घोड़े और ऊंट के साथ भागा, फिर कूदकर घोड़े पर सवार हुआ। घोड़े और ऊंट की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था। घोड़े की पीठ से वो ऊंट की पीठ पर चला गया और दूर आगे जाकर गायब हो गया। खादिमुद्दीन अलबर्क दाएं को जरा सा झुका। उसके मुंह और लड़की के सर के दरमियान 2-3 इंच का फासला रह गया था। लड़की ने उसे देखा। अलबर्क मुस्कुराया। लड़की शर्मा गई। बूढ़े ने दोनों को देखा। उसके बूढ़े माथे की शिकन गहरी हो गई।
अचानक टीलों के पीछे से हांडियों की तरह के मिट्टी के वो बर्तन जो घोड़ा गाड़ियों पर लदे हुए थे ऊपर को जाते, आगे आते और मैदान में गिरते नजर आए। बर्तन टूटते थे तो तेल उछल कर बिखर जाता था। कमोबेश 100 बर्तन गिरे और उनसे निकला हुआ मादा तकरीबन 100 गज लंबाई और उसी कदर चौड़ाई में बिखर गया। एक टीले पर 6 तीरंदाज नमूदार हुए। उन्होंने जलते हुए फलीतों वाले तीर चलाए जो सियाल मादे वाली जगह गिर गए। फौरन वो तमाम जगह एक ऐसा शोला बन गई जो घोड़े की पीठ तक बुलंद और कई 100 गज तक फैला हुआ था। एक तरफ से 4 घोड़सवार घोड़े पूरे रफ्तार से दौड़ते आए। शोले के करीब आकर वो रुके नहीं, रफ्तार कम भी न की, चारों शोले में चले गए। तमाशाई दम बखुद थे कि वो जल जाएंगे, मगर वो इतने वसी शोले में दौड़ते नजर आ रहे थे। आखिर वो चारों शोलों में से निकल गए। तमाशाइयों ने दादो तहसीन का वो शोर बुलंद किया कि आसमान फटने लगा। 2 सवारों के कपड़ों को आग लग गई हुई थी। दोनों भागते घोड़ों से रेत पर गिरे और थोड़ी दूर लुढ़कनियां खाते गए। उनके कपड़ों की आग बुझ गई। अलबर्क इस शोर-ओ-गुल और सवारों के कमालात से नजरें फेरे हुए लड़की को देख रहा था। लड़की उसकी तरफ देखती रही और जरा सा मुस्कुराकर बूढ़े को देखने लगती थी। बूढ़ा उठकर जाने क्यों चला गया। लड़की उसे जाता देखती रही। अलबर्क को मालूम था कि लड़की बूढ़े के साथ आई है। उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ चले गए हैं? लड़की ने जवाब दिया, ये मेरा बाप नहीं, मेरा खाविंद है। अलबर्क ने हैरत से पूछा, खाविंद? क्या शादी तुम्हारे वालिदैन ने कराई है? लड़की ने उदास लहजे में कहा, इसने मुझे खरीदा है। अलबर्क ने पूछा, वो कहाँ गया है? लड़की ने जवाब दिया, नाराज होकर चला गया है। उसे शक हो गया है कि मैं आपको दिलचस्पी से देखती हूँ। अलबर्क ने रूमानी अंदाज से पूछा, क्या तुम वाकई मुझे दिलचस्पी से देखती हो? लड़की के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। धीमी सी आवाज में बोली, मैं उस बूढ़े से तंग आ गई हूँ। अगर किसी ने मुझे उससे निजात न दिलाई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैदान में सवार और प्यादा फौजी हैरान कुन करतब दिखा रहे थे और हरब और ज़र्ब के मुजाहिरे कर रहे थे। तमाशाइयों ने जंगी मुजाहिरे पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने सिर्फ सूडानी फौज देखी थी जो खजाने के लिए सफेद हाथी बनी हुई थी। उसके कमानदार बादशाहों की तरह बाहर निकलते थे। उनके साथ अगर फौज का दस्ता हो तो वो देहात के लिए मुसीबत बन जाते थे। मवेशी तक खोल कर ले जाते थे। किसी के पास अच्छी नस्ल का ऊंट घोड़ा देखते तो जबरदस्ती ले जाते थे। लोगों के दिल में ये बात बैठ गई थी कि फौज रआया पर जुल्म तशद्दुद करने के लिए रखी जाती है, लेकिन सुल्तान की फौज बहुत मुख्तलिफ थी। एक तो वो दस्ते थे जो मुजाहिरे में शरीक थे, बाकी फौज को सुल्तान की हिदायत